मतलब एक पॉइंट पे तो मैं थी कि मैंने क्या किया अपनी लाइफ में, वाज लिविंग अ गुड लाइफ बैक इन इंडिया। अब 4-5 से जॉब्स अप्लाई कर रहे हो तो लाइक एक्सपेक्ट जस्ट 5-10 और इतना टाइम एंड मनी दोनों ही इन्वेस्ट करना, एंड देन जितने स्ट्रगल्स होते हैं, जितने चैलेंजेस होते हैं, उसके बाद इट वाज ऑल वर्थ इट. फॉर श्योर. Hey everyone, and welcome to our first podcast. I'm really excited about today's episode because we have our first guest with us. She came to the United States in 2021 to pursue her master's in business analytics from the University of Cincinnati, and now she is working as a data engineer in Comcast in Chicago. Today, we are going to dive into her journey of studying in the US, navigating her career, and the challenges and rewards of building a new life in a different country. We'll talk about everything from adapting to a new culture, her experience of getting that first job, and how she manages life in a bustling city like Chicago. So, without further ado, let's get back into the conversation. Hello, Divya. Thank you for joining us today and welcome to our first episode of Abroad Unplugged. So, what was your first impression in the US when you first landed here? Okay. So I landed in Chicago. The moment I stepped out of the airport, I was like, why is this place so cool? Yeah, you came in January, so I can imagine Yes. that. Yeah. And then I took a flight to Cincinnati. Cincinnati, the place where I used to live, was a college town, mostly students. Like it's a university area, so everybody there, mostly people living there are students. And then what? The next day I stepped out of my place and I'm like, where is everyone? Because I'm coming from India, which is like densely populated, and then And यहाँ पे इतने ज़्यादा this लोग town नहीं in दिख रहे थे यार. exactly this college town in Cincinnati is And like especially मेरे को लगता है winters में कम लोग होते हैं बाहर. exactly my point कि उस टाइम ये भी था winters holiday season, so जितने भी लोग कॉलेज के आसपास रहते हैं वो they were at their places. और आई celebrating. थिंक कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ था, हम एक वीक पहले तो आ ही जाते हैं, तो वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा होता है. Exactly. Yeah. So that was my first impression of that city. उसके बाद फिर next few days you actually you're busy setting up your place. So also that like I had a really different experience here क्योंकि I ordered few stuff like furniture and all from Amazon, and I wasn't used to building, assembling my own furniture. That was a shock, like culture shock. And हाँ मैंने पहले IKEA पे सर्च किया था कि I was looking for a table, study table and bed. So that study table was around $50. ठीक है, then I'm like, I got really excited कि wow, nice deal and all. अभी तो order कर देती हूँ ये. And then checkout page पे उस पर I think more than $50, like Shipping. double the price of what that table was. They were charging me delivery charge, and I'm like, what? ये सारी चीजें तो काफी easy थी इंडिया पे. एंड इवन आप अगर वो घर पे डिलीवर कर रहे हैं तो वो इंस्टॉल या बिल्ड भी करके जाते थे पूरा घर. और क्या चैलेंजेस आए जब इनिशियली यहाँ पर मूव हुए? क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस ये कि अपना सारा काम बेसिकली खुद करना पड़ रहा है, जो हमें इंडिया में तो आदत नहीं थी. सो ऐसा नहीं था कि मैं पहले घर पर ही थी. मतलब आई वाज लिविंग इन पुणे फॉर लाइक लास्ट बिफोर मूविंग हियर. आई वाज लिविंग इन पुणे. आई वाज डूइंग अ जॉब देयर. तो वहाँ पर इवन दो यू आर अवे फ्रॉम होम, पर आपको फिर भी आपको पूरा काम खुद नहीं करना पड़ता. यू गेट हाउस हेल्प, लाइक खाने वाली दीदी आ रही है, सफाई वाली दीदी आ रही है. यहाँ पर आके सारा काम खुद मैनेज करना है, दैट टू विद योर academics. एंड मेरे केस में ऐसा हुआ था कि the course I took, as I said, it was a 1-year course, so it was very heavy on academics. Like हमने first semester में ही 18 credits किए थे. Like I think double the average जो लोग करते हैं. हाँ, आई थिंक 10 या 11 क्रेडिट्स लोग ज़्यादातर लेते हैं. 10 पे भी लोग शौक हो जाते हैं. मतलब मैं अपने सारे बाकी दोस्तों को जानती हूँ जो 2 साल का कोर्स किया. टोटल कितने क्रेडिट्स थे तुम्हारे कोर्स में? 36 या 18 तो लेने पड़ेंगे 2 सेमेस्टर का कोर्स है तो. आई थिंक 38 के थे, 2 एक्स्ट्रा करने पड़े थे बिकॉज ऑफ कुछ तो, क्योंकि मैं
बिजनेस स्कूल से कोर्स करी थी, तो फिर कुछ कुछ बिजनेस के सब्जेक्ट्स थे जो मेरी पुरानी डिग्री में नहीं सेटिस्फाई हो रहे थे, तो दे आस्क्ड मी टू डू दैट एज वेल, तो आई थिंक 38 हो गया था. So 18 credits each semester and then first semester तो फिर भी थोड़ा नया भी होता है आपके लिए, चैलेंजिंग तो होता ही है, then दूसरे सेमेस्टर आपके पास जॉब लेने का प्रेशर भी होता है along with 18 credits. एग्जैक्टली. तो फिर वो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए. मतलब एक पॉइंट पे तो मैं थी कि मैंने क्या किया अपनी लाइफ में, वाज लिविंग अ गुड लाइफ बैक इन इंडिया, डाउटिंग माय ओन डिसीजंस. सो यहाँ पर मास्टर्स करने का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक कुछ डिफरेंट लगा इंडिया से, या मतलब क्या यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है? मास्टर्स का एक्सपीरियंस मैं अपने अंडरग्रेड से कंपेयर करूंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने आई हैवंट डन मास्टर्स बैक इन इंडिया. तो यहाँ पे ना स्ट्रीमलाइन है प्रोसेस. लाइक असाइनमेंट्स मिल रहे हैं तो मैं वो खुद करने पड़ेंगे. प्लेजरिज्म वाला सीन है कि अगर आपने गलती से भी किसी का कॉपी किया, आई सीन पीपल गेटिंग कॉट इन दैट सिचुएशन जहाँ पर उन्होंने कॉपी करी है, एंड देन आपको बैक लग जाती है, या फिर यू नो एक केस बन जाता है उस पर. वो बिल्कुल अलाउड नहीं है. पर इंडिया में तो प्रीटी चिल, हम तो कॉपी करते थे पक्का एंड लास्ट डे पे असाइनमेंट के. एंड आई थिंक अगर हमें यहाँ पे, हम जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं एंड इतना दूर आए हैं, इतना स्पेंड किया, इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, तो थोड़ा सा वो भी लगता है कि अगर हम ये सब करेंगे तो वी माइट बी सेंड बैक, और मे बी स्टडीज़ पे क्या इफेक्ट आएगा. काफ़ी बड़ा रिस्क होता है. मतलब आप खुद भी नहीं करोगे. राइट. कोई भी नॉर्मल सेन इंसान, ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस. देन हाँ, कोर्स वर्क वाइज तो नॉर्मली था, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा था मुझे. क्लासेस भी नॉर्मल थी. इनफैक्ट असाइनमेंट्स तो सिंपल ही थे व्हेन इफ आई कंपेयर देम टू व्हाट वी यूज्ड टू गेट बैक इन इंडिया इन माय इंजीनियरिंग डेज. तो उससे तो पक्का सिंपल असाइनमेंट्स हमें मास्टर्स में मिलते थे. बाकी एक्सपीरियंस, हाँ वही यूनिवर्सिटी काफ़ी मतलब ग्रैंड स्केल की होती है. और रेशो क्या था लाइक क्लास में? लाइक कितने स्टूडेंट्स थे और उसमें से कितने लोकल थे? मतलब स्टार्टिंग में अब्रॉड का रियल एक्सपीरियंस तो नहीं था वो, बिकॉज ऑल माय लाइक 90% ऑफ माय क्लासमेट्स वर इंडियन. एंड देन मैंने वी जॉइंड जस्ट आफ्टर कोविड, तो हमारी क्लासेस भी इन पर्सन नहीं थी. ओह राइट. सो पहला सेमेस्टर यू वर एसेंशियली रिमोट? मोस्टली रिमोट, या सेकंड सेमेस्टर हम 2-3 क्लासेस गए. ओके. 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए मतलब क्लासेस थी कैंपस में. ये डिफरेंट था. ओके. एंड ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे लीनियंट है, या जैसे इंडिया में काफ़ी टफ होता है? एग्जैक्टली वही. यहाँ पर असाइनमेंट्स काफ़ी सिंपल मिलते हैं. असाइनमेंट्स के बेस पे आपको आपके ग्रेड मिलते हैं. आप एग्जाम्स बहुत सिंपल, मतलब कंपेयर करूँगी तो सिंपल होता है, बिकॉज इंडिया में तो आपको 3 घंटे बैठ के एग्जाम में थ्योरी लिखनी पड़ती थी. यहाँ पर बहुत सारा पोर्शन ऑफ योर ग्रेड इज ऑलरेडी कवर्ड इन असाइनमेंट्स यू गिव. व्हाट इज मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं था. और हाँ, तो सिंपल ही था. कोर्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, डूएबल है, बट लाइक आप थिंग्स दैट यू डू आफ्टर योर कोर्स टू गेट अ जॉब आर डिफिकल्ट. तो क्या डिफिकल्टीज आई जॉब लेने में? तो इंडिया में अंडरग्रेड में कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो कंपनीज कैंपस में ही आती हैं. ऑल यू नीड टू डू इज टू गिव अ रिटन एग्जाम, और इंटरव्यूज भी काफ़ी सिंपल होता है. दैट्स हाउ आई गॉट माय जॉब बैक इन इंडिया. बट यहाँ पर वो वाला कोई सिस्टम नहीं होता. यू हैव टू डू योर ओन नेटवर्किंग. बट करियर फेयर में कंपनीज आती हैं, जो लाइक करियर फेयर में गए थे? एक हाँ, वो भी वर्चुअल था. ओके. हाँ, लाइक उस टाइम ये बड़ा चैलेंज था कोविड के टाइम पे कि आपका इतना नेटवर्किंग तो हो नहीं सकता था, जो भी है वर्चुअल है. तो मैंने करियर फेयर में जितनी कंपनी से बात की थी, वो मतलब ऐसे वर्चुअल कॉल था. एंड इवन लाइक करियर फेयर का एक्सपीरियंस क्या था? लाइक वो आपको वहाँ पर जॉब के लिए इंटरव्यू करते हैं, या बस लाइक आप बात करते हो उनसे? दैट इज मोर ऑफ गाइडेंस दे गिव. लाइक ऐसा एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आई थिंक सिंसिनाटी बेस 1-2 कंपनीज में वहाँ के HR लोग से बात की थी, एंड दे रिव्यूड माय रेज्यूमे. ओके. फिर हाँ, उसमें 2-4 क्वेश्चंस पूछे उन्होंने. told me what to do next, and if I want to get in touch with them, they are always open, gave me their like email addresses. That's it. Like say
तो I think यही होता है। एक्सटेंसिवली करियर फिर से ऐसी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं हुई, यू अप्लाइड उसके बाहर ही लिंक्डइन या फिर इंडीड वगैरह पे? एंड यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड कंपनीज, जैसे एटलीस्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ऐसा होता है ना, इवेंट से अगर नहीं मिल रही होती है तो देन यू आर लाइक you're okay with working anywhere to start with, but start सर्च करने से पहले तो आप हमेशा अच्छी कंपनीज में जाना चाहोगे। करियर फेयर में एटलीस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी में इतनी कोई इसे नाम टाइप बड़ी कंपनीज नहीं आई थी, लोकल सिंसिनाटी एंड अगेन हाँ सिंसिनाटी फोकस्ड, ओहायो फोकस्ड, एंड अगेन दैट माइट बी बिकॉज कोविड के जस्ट बाद वो था लाइक 21 जनवरी में आई थिंक आई हर्ड कि उस टाइम भी जो बच्चे ग्रेजुएट्स हो रहे थे, बिकॉज उस टाइम ले ऑफ्स भी बहुत हो रहे थे, तो टू गेट अ जॉब वाज इटसेल्फ डिफिकल्ट। एग्जैक्टली, तो मे बी वो रीजन था कि इतनी कंपनीज नहीं थी। सो यू अप्लाइड, फिर कहाँ पर कैसे हुआ? फिर उसके बाद अगस्त में जब हमारा कोर्स वर्क खत्म हो गया तो फिर दिन भर बैठ के हमने यही किया है, लिंक्डइन पे जॉब्स अप्लाई किया है, लोगों को रीच आउट किया है जिनको मैं जानती थी मेरे अंडर ग्रेड के सीनियर्स बैच में जो ऑलरेडी यूएस में आके सेटल यहाँ जॉब कर रहे थे। हाँ, बहुत सारा रैंडम लोगों को रीच आउट दैट हियर्स माय रिज्यूमे, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, एंड मैंने भी रिसेंटली मास्टर्स किया है, ये मेरी स्किल सेट है, लाइक दे आर लाइन एग्जैक्टली वो। तो रिस्पॉन्सेज आते थे, जैसे लाइक काफी अननोन लोगों को आप रीच आउट कर रहे हो तो लिंक्डइन पे रिस्पॉन्सेज आते हैं? एटलीस्ट ये रिस्पॉन्स तो आता है कि हाँ मतलब दे एक्नॉलेज, कि दे एक्नॉलेज, बट दे माइट नॉट हेल्प यू लाइक ऐसे रेफरल देने में, या फिर रेफरल दिया भी तो वो इतना काम नहीं आया कि मुझे इंटरव्यू कॉल आया हो, बट लोग रिप्लाई तो करते ही हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो ना, हाँ मतलब आज के टाइम पे अगर मुझे कोई रीच आउट करता है तो मैं एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करती हूँ वैसा। एंड देन हाँ फिर बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया मैं। तुमने भी जस्ट पूछा कि कितना अप्लाई करना पड़ता है, तो लाइक अगर आप 400-500 जॉब्स अप्लाई कर रहे हो तो लाइक एक्सपेक्ट जस्ट 5-10 इज ऑल्सो अ बिग नंबर, आई थिंक 5 कॉल बैक्स, और फिर सब कुछ वर्कआउट सबके लिए कर ही जाता है, तो यू नो फिर आपको इवेंचुअली जॉब मिल जाती है। दैट्स माय स्टोरी एंड दैट्स व्हाट आई नो फ्रॉम एवरीवन एल्स आई नो। तो उस टाइम पे जब लाइक आई थिंक एक क्लॉक भी आपका शुरू हो जाता है जब आपका कोर्स खत्म हो गया है, एंड इफ यू आर इन अ स्टेम डिग्री तो 90 डेज होते हैं 90 डेज में आपको जॉब लेनी होती है। तो उस टाइम पे टेंशन होती थी, लाइक प्रेशर होता था या टेंशन होती थी कि ओ माय गॉड अब इतने दिन रह गए हैं, या ओ माय गॉड अब अभी इतना कुछ नहीं आया है रिस्पॉन्स, या अभी टर्न आउट नहीं हुआ ऑफर, कुछ ऐसी टेंशन होती थी? काफी ज्यादा। एंड उस टाइम पे सभी के सारे लोग आपके बैचमेट्स जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो ऑफकोर्स कुछ लोगों को मिलती भी है, तो वो प्रेशर भी होता है कि यू नो कंपैरेटिवनेस जॉब में है, या बीइंग एन इंडियन हमेशा से रहा, तो हाँ काफी स्ट्रेस होता है इस बात का कि आपको 90 डेज में जॉब ढूंढनी होती है। लकीली आई गॉट माई जॉब इवन बिफोर लाइक द स्टार्ट होने से पहले ही। तो हाँ अभी के टाइम पे डिफरेंट स्टोरीज, हमारा टाइम फिर अलग था क्योंकि उस टाइम जॉब्स आ भी रही थी, राइट, मार्केट खुल रहा था कोविड के जस्ट बाद, जॉब्स थे, बट अभी के टाइम पे आई वर्ड की लोगों को 90 डेज में भी नहीं मिलती है, और मे बी बहुत लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 90 डेज पीरियड मिलता है। तो या एंड ऑल्सो अगर जॉब, जैसे मैंने बोला कि आप 100 जॉब अप्लाई करोगे 5 में कॉल बैक आएगा, बट फिर मे बी 10 में आएगा, बट वो उसमें उन 10 में भी 5 जॉब्स ऐसी होंगी जो आपको स्पॉन्सर नहीं कर रही होंगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि वीजा स्पॉन्सरशिप वाली ही जॉब्स ढूंढनी है। मार्केट में भी उस टाइम खुला भी था, बहुत सारी जॉब्स ओपनिंग अवेलेबल भी थी, बट लाइक देयर वेरी फ्यू ऑफ देम जो कि स्पॉन्सर कर रही थी। या आपको वो एम्प्लॉयर चाहिए होता है हु इज रेडी टू स्पॉन्सर यू। इवन लाइक लोगों को लगता है, जैसे मैंने काफ़ी जो नए बच्चे आते हैं उनसे भी सुना है, और काफ़ी जो लिंक्डइन पे हमें रीच आउट करते हैं कि हमें भी अप्लाई करना है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, तो लोगों को लगता है कि हमको इवन हम स्टेम डिग्री कर रहे हैं तो हमें 3 साल का वर्क एक्स मिलता है, फर्स्ट ईयर OPT एंड देन आप 2 साल स्टेम OPT एक्सटेंड कर सकते हो, तो वाई डू यू नीड अ स्पॉन्सरशिप, बट स्टिल यू नीड अ एम्प्लॉयर जो OPT या स्टेम OPT पर रेडी है आपको लेने के लिए, एंड देन आपको पता है कि वो लिमिटेड है या 2 या 3 साल चलेगा, देन यू नीड अ H1, सो यू नीड एन एम्प्लॉयर हु इज़ रेडी टू डू दैट फॉर यू।
तो वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। वो उससे मुझे याद आया कि मैंने तो जो कंपनी मैंने कंसल्टिंग कंपनी ज्वाइन की तो उससे पहले आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम आई डोंट रिमेम्बर आवर कंपनी बट इट वाज अ बिग ह्यूज नेम फ्रॉम लाइक से एमएनसी तो एवरीथिंग वेंट वेल दे ऑफर्ड मी अ जॉब एंड जब मैंने अपने कॉलेज में सीपीटी लेटर अप्लाई किया देन दे सेड कि ओ हम तो सीपीटी स्पॉन्सर ही नहीं करते हमें तो पता ही नहीं था ये बात ओ ये पहले डिस्कस ही नहीं हुई थी ये चीज़। हाँ एग्जैक्टली Right. क्लैरिटी नहीं थी बेसिकली उनके मतलब दी रिक्रूटर एंड दी सिंस इट वाज एन एमएनसी तो जो भी उनका वीजा वाला डिपार्टमेंट इमिग्रेशन हाँ इमिग्रेशन टीम ओके एंड यू सेड यू जॉइंड अ कंसल्टिंग कंपनी फर्स्ट तो काफ़ी लोगों के दिमाग में थोड़ी नेगेटिविटी भी होती है कंसल्टिंग कंपनीज को लेके और लोग सोचते हैं कि स्टाफिंग एंड कंसल्टिंग कंपनीज आपको वो एग्जैक्ट प्रोजेक्ट नहीं देते या वो काम नहीं देते जो वो प्रॉमिस करते हैं, तो आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ था या फिर सो मेरी वो या sorry. गो इट। सो मेरी कंसल्टिंग कंपनी वाज नॉट लाइक जो इंडियन कंसल्टिंग कंपनीज इनके बारे में हमने बुरा सुना होता है जो आपके लिए H1B भी अप्लाई कर रही होती है एंड देन दे गॉट बाय USCIS बिकॉज दे आर नॉट लेजिटिमेट इट वाज अ लेजिटिमेट कंपनी बेस्ड इन कोलंबस जो कि ऑफ कोर्स से बिग फर्म्स को से compete कर रही थी तो हम मुझे में कोई प्रॉब्लम नहीं आया ऑनेस्टली right from I joined I got a project and then they switched me to so I was not happy with the work that I got initially then I complained I just let my manager know about it so they moved me to different project so personal experience ना वैसा नहीं है जिसमें मुझे कुछ प्रॉमिस किया गया और मुझे वो नहीं मिला बट या अगेन आई हर्ड स्टोरीज ऑफ कंसल्टिंग कंपनीज न्यूज़ में कि they just hire you saying कि हाँ हम आपके लिए H1B अप्लाई कर देंगे Okay. and then eventually projects नहीं होते उनके पास they keep you on bench सो आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी थोड़ा सा बताओ कि यहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है लाइक कंपेयर करें क्योंकि यू सेड यू वर्कड इन इंडिया एज वेल इन पुणे सो वहाँ के वर्क कल्चर से कंपेयर करें तो यहाँ क्या डिफरेंसेस हैं वर्क कल्चर में, क्या पॉजिटिव है और इफ़ देयर इज़ अ नेगेटिव टू। so again I'll tell my personal experience मैं जिस कंपनी में इंडिया में काम कर रही थी काफी चिल माहौल था so मैं the reason I moved to US is basically मुझे career growth चाहिए था वहाँ पर थोड़ा stagnant था लाइफ इतना काम नहीं था और मे बी सपोर्ट का काम था से एक्चुअली ऐसा टाइप कुछ ऑफ काम वर्क यू वर नहीं था। गेटिंग आपको वो कि चेंज मैं करना था। हाँ स्विच करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती वैसा हाँ मतलब चिल लाइफ थी वहां पर ज्यादा काम नहीं था एंड देन महीने में 2 महीने में एक बार ऐसे हेक्टिक डेज होते थे बट यहाँ पे मुझे रेगुलरली अच्छा काम मिलता है अगेन हमारे कंपनी में हम मतलब आई डोंट नो दिस इज अ थिंग ऑन जिसमें आप सपोर्ट वाला काम इंडिया के काउंटर पार्ट से करवाते हो आई डोंट नो तो हाँ सो नाउ लाइक आपको फील होता है कि आप दूसरे उसमें आ गए हो लाइक आप जो पहले होता था कि यू आर ऑन द अदर साइड नाउ। राइट एग्जैक्टली हाँ और वर्क वाइज हाँ मतलब वर्किंग कल्चर इज अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह 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 वो सब तो यहाँ पे भी होते हैं ऐसा नहीं है कि काफी अलग ही लोग टाइप के लोग हैं यहाँ पर वो तो हाँ वर्क कल्चर तो ऑफिस गए थे या लाइक घर से करना था? बड़ा सा क्वेश्चन मैं आज तक अपने यूएस के करियर में सिर्फ एक बार नहीं 2 बार ऑफिस गई हूँ ओके लेकिन जैसे लाइक काफ़ी लोगों को लाइक मेरे को तो आया था कि मैंने रिमोटली ज्वाइन की थी अपनी पहली कंपनी भी मास्टर्स के बाद तो स्पेशली यूएस में आप पहली बार काम कर रहे हो एंड देन मैंने आज तक लाइक बिफोर कोविड इंडिया में तो हम ऑफिस ही जाते थे हर जगह ही लाइक हाइब्रिड स्केड्यूल था या फिर आप मोस्टली ऑफिस जाते हो तो इतना चैलेंज नहीं आया था मुझे कोई भी कंपनी ज्वाइन करने में बट तुम्हें ऐसा लगा था कि आप रिमोटली ज्वाइन कर रहे हो तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि आप मिले नहीं हो पहले किसी से तो आप रीच आउट कैसे करो तो यहाँ पर वो चीज़ ईजी थी या चैलेंज आया उसमें? आई थिंक वो डिपेंड करता है कि आपका कंपनी का डायनेमिक्स क्या है उनका ऑनबोर्ड करने का तरीका कैसा है एंड हाउ फ्रेंडली दे आर एज विद द न्यू हायर्स तो मेरे केस में कॉमकास्ट में तो इट्स वेरी स्मूथ मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आया बट हाँ एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि अगर आप इन पर्सन होते तो
ज्यादा अच्छे Better बॉन्ड्स बन होता है। पाते, जो कि ऑफ कोर्स आई हैव अ गुड फ्रेंड राइट नाउ आल्सो। मेरे आई एम फ्रेंड्स विद माय कलीग्स फ्रॉम इंडिया। बहुत ही अच्छा अच्छा बॉन्ड था वो। ऑफ कोर्स मैं यहाँ नहीं बिल्ड कर पाऊंगी बिकॉज मैं डेली नहीं मिल रही हूँ उनसे, इन पर्सन नहीं मिल रही हूँ। और अगर बात भी कर रही हूँ तो इट्स मोस्टली इट स्टार्ट्स विद वर्क रिलेटेड स्टफ एंड देन इट गोज टू पर्सनल, और जो भी है कि हाँ क्या चल रहा है एंड ऑल। तो ये काम, ये एक्चुअली बॉन्ड्स बनाने वाला चीज इज बेटर इन केस ऑफ your इन home country. पर्सन, यहाँ नहीं होता। एंड वीज़ा के कोई इश्यूज आए, लाइक H1B लॉटरी सिस्टम में गए होगे, एंड कौन से ईयर में लॉटरी में फाइनल सिलेक्शन हुआ? हाँ सो मेरा इसी साल हुआ है, विच इज लाइक माई थर्ड अटेम्प्ट, तो आई वॉज द फुल रेडी। Oh, it was your third and final attempt. यस, अगर नहीं हुआ तो आई विल जस्ट पैक माई बैग्स एंड गो बैक टू इंडिया एंड फाइंड अ जॉब देयर। तो काफी, अब वो तो मतलब वीजा वाला स्ट्रगल तो काफी, इट्स रियली बैड सिचुएशन राइट नाउ यार। तुमने वो से केसेस सुना ही होगा जिसमें लास्ट टू इयर्स से वो लोग the number of applications they get is Yeah. like 3-4 times what they used to get initially. So आपके chances of getting selection, it used to be 1 in 3 application, now it's 1 in 11 applications. तो बहुत ही मुश्किल है, इवन though उन्होंने 2-3 राउंड करने चालू कर दिए हैं, बट बहुत मुश्किल हो रही है H1B लॉटरी में। एंड उनका कैप तो वही है, ऐसा नहीं कि कैप हाँ, बढ़ गया, exactly, एप्लीकेशंस बढ़ा। बढ़ गए एंड लोग मल्टीपल एप्लीकेशंस डाल रहे थे। हाँ, तो कंसल्टिंग कंपनीज आपके बिहाफ पे 10-10 एक इंसान के बिहाफ पे 10-10 एप्लीकेशन डाल रही थी, जिससे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफी बढ़ गए थे। तो एक तो सिंगल बंदे की ही मल्टीपल एप्लीकेशंस थी, तो उस वजह से टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इंक्रीज्ड, बट स्टिल कैप सेम है, सो इट्स डिफिकल्ट कि आपका इट्स वेरी डिफिकल्ट नाम आएगा उसमें। और पीपल जिनका थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ है, तो हाँ वैसे डिफिकल्ट है, बट लकीली। सो अब जैसे कंग्रेचुलेशंस H1 स्टैंपिंग के लिए एंड सॉरी H1 वीज़ा के लिए। सो ऐसा लाइक स्टैंपिंग हो गई अभी, या यू आर लाइक लुकिंग फॉर द वीज़ा स्लॉट? A visa slot. I am looking for a visa slot. So which this is again- another challenge after getting selected for Once H1B. you get your visa approved, it's not like you're not sorted, because then you have to find a slot, और उसके लिए आपको इंडिया ही जाना पड़ेगा। You can't get it done here in US. तो बहुत अभी भी मुझे, मैं गोइंग टू दैट फेज जहाँ पर मैं डेली सुबह 5 बजे उठ के स्लॉट्स देखती हूँ और नहीं मिला है मुझे एक पिछले महीने से, तो इट्स डिफिकल्ट। Okay. So यहाँ US में रहने में like how would you say it has impacted your personal and professional life? Professionally, I'm doing better job than better work than I used to do. Like मेरा resume पक्का अच्छा build हुआ है कि now I can talk about things if I like want. If I'm switching, I'm giving interviews, I can talk about real things that I did at my work rather than just lying about it. So Yeah. lying on my resume. Yeah. So Like इंडिया में ऐसा होता था, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं जो काम कर रही हूँ वो अगर मेरे को जॉब स्विच करनी है और इंटरव्यू देना है, तो मैं ये सोचती थी कि मैं बताऊँ क्या कि मैं क्या कर रही हूँ। Yeah. Exactly. तो अब वो वाला काम तो नहीं है। मैं वाकई बात कर सकती हूँ जो मैंने किया अपने जॉब पे। पर्सनली इंडिपेंडेंस काफी आ गई है, मतलब अब Oh yeah. I'm living alone in a city like Chicago, doing all my stuff, like things on my own. Household chores वगैरह खुद करना। Exactly. So, इवन नए friends शुरू में ये चीज़ थी लाइक इंडिया में तो हमेशा लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रही हूँ। यू वर लिविंग इन पुणे, बट स्टिल लाइक हमेशा ऐसा होता था कि यार ये चीज़ तो पापा मम्मी करते हैं, अब ये चीज़ खुद यहाँ पे आपको अपने लिए खुद डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। ऐसा हुआ? हाँ, and even though if you don't like doing that stuff, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, वो करनी पड़ेगी। लोग आगे जैसे I don't like doing laundry, मतलब मैं तो कभी नहीं, घर पे तो मम्मी करके देती है आपकी। और हाँ, पुणे में भी इवन यू गेट डोमेस्टिक हेल्प। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम इतना रोरे गा रहे हैं कि खुद करना पड़ा, बट इट्स स्टिल एक्सपेंसिव फॉर अस कि हम कंसिडर करेंगे कोई आए और ये सब साफ करे तो काफ़ी सारा एक्सपेंस हो जाता है। ओके। तो ऐसा लगा वैसे- कभी
Yeah, go ahead. Yeah, I'm just completing that. I feel like I'm more independent. I made really good friends here. So Nice. the friends like family बने यहाँ पर. हाँ. तो कभी तो लाइक why not बीमार होते हो या experience? सिक होते हो सिंस यू लिव अलोन, सो होम सिकनेस होती है या कभी ऐसा लगता है कि लाइक घर काफी वाले दुख होते रहता है. और मैं जितनी बार भी अपनी मम्मी को बताती हूँ that I'm sick, and she's like, अरे अगर तू इंडिया में होती तो मैं अभी आ जाती. मैंने बोला ये चीज पॉसिबल नहीं है ऑफ कोर्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स एंड गुड good फ्रेंड्स लाइक एग्जैक्टली. जो आप एक दूसरे की हेल्प कर सको, राइट? ओके. एंड कभी ऐसा लगा कि जैसे इंडिया में रहते थे तो पेरेंट्स से कितना बात करते थे वर्सेस यहाँ आके पेरेंट्स से कितना बात करते, बिकॉज इन योर केस इवन इफ यू वर लिविंग इन पुणे स्टिल अपार्ट फ्रॉम होम, डिफरेंट है कि वहाँ घर से दूर रहना प्लस यहाँ घर से दूर रहने में ऐसा लगा कि लाइक यू हैव कम क्लोजर टू योर पेरेंट्स. ऑफ कोर्स डेफिनेटली. और पुणे में भी ऐसा था कि मैं हर महीने घर तो जाती ही थी. लाइक 1.5 महीने में 2 महीने में एक बार तो घर पक्का जाती थी, बिकॉज इंदौर काफी पास है पुणे से, तो लाइक ओवरनाइट बस एंड यू आर होम. बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. और हाँ, मैं पक्का मतलब मेरी मम्मी तो परेशानी होंगी मैं वो भी मुझे कॉल करती है और मैं भी उन्हें इससे दिन में 2 बार कॉल कर लेती हूँ. तो हाँ, ओके. of course you miss your parents more, because of course you're so away from home. You miss out on say celebrations, घर के functions, त्योहार. हाँ, ये सब आप मिस कर देते हो. इवन इंडिया में अगर पुणे में रहते तो इट वाज रिलेटिवली ईजियर कि आप चले जाओ ओवरनाइट पहुंच जाओगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है एंड कोई ऑप्शन नहीं होता आपको. ऑफ कोर्स यहाँ पर अगेन अपने फ्रेंड्स के साथ आप वो सब सेलिब्रेट करते हो, बट घर का तो घर ही है ऑफ कोर्स. हाँ, तो right. कुछ तो मिस करोगे. और फिर स्पेशल मोमेंट्स आपके फैमिली के, लाइक भाई की शादी, मैंने अपने भाई की शादी मिस की है तो आई कैन जो इमेजिन. इंडिया में नहीं होता. हाँ. भाई की शादी एंड देन आपका नेफ्यू हुआ. हाँ एग्जैक्टली. मतलब वो मिस करते हैं मोमेंट्स आपकी लाइफ के, आप वो मिस करना पड़ता है. लाइक मेरा नेफ्यू हुआ था एट द सेम टाइम 1 महीने पहले ही, एंड ऐसा लगता है इवन मेरे पापा ने मुझे कॉल करके बोला था कि तू मिसिंग थी, लाइक ऐसा लग रहा था कि यू वर नॉट देयर. तो वो फैमिली कंप्लीट होती है आपकी, तो वो इंजॉयमेंट डबल हो जाती है. एंड आप भी मिस करते हो. लाइक वीडियो कॉल्स पे आप ठीक है बात कर लेते हो, बट इट स्टिल जब बड़े मोमेंट्स होते हैं तो आपको लगता है कि आप वहाँ होते. घर पे होते तो बात अलग होती, बट फिर वो तो है ही. प्रोज एंड कॉन्स तो हैं ही हर जगह, कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ गए हो तो सब बढ़िया बढ़िया है. एग्जैक्टली. ओके. एंड यहाँ पे कभी लाइक लोगों के दिमाग में होता है कि यहाँ पर तो कोई इतना थेफ्ट एंड क्राइम नहीं होता होगा या कम होता होगा. हैव यू बीन इन अ सिचुएशन कि कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? थेफ्ट आई वुड से कम, मतलब मैं तो आई हैव अ स्टोरी टू टेल, बट कंपैरेटिवली कम है. और क्राइम का तो आई वोंट से क्राइम पक्का यहाँ पर, मतलब ऑफ कोर्स जो इंडिया में हो रहा है वैसे क्राइम नहीं होंगे, बट लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम जिससे आप हमेशा डरे डरे रहते हो, लाइक गन वायलेंस. यू नो यहाँ पर स्कूल्स में क्या चलता है, इनफैक्ट पब्लिक प्लेसेस पे भी क्या चलता है, यू नेवर नो. यू नॉट 100% safe if you're going out in very populated place और ऐसे बाहर भी. और theft का I said I have a story to tell. So I went to this. So I moved in Chicago back in 22 November 22. I went to this Diwali party. Oh नहीं, first I got like October 22 में मैंने नया फोन लिया. After like I was using this iPhone SE from last 2-3 years, छोटू सा फोन. तो मैं काफी एक्साइटेड थी नया फोन लेने के लिए. I got 14 Pro and I went to this दिवाली पार्टी जहाँ पे बहुत भीड़ थी. ऑफ कोर्स दिवाली पार्टी थी, देसी लोग ही थे, बहुत भीड़ थी. और मेरा फोन मेरे बैग में था एंड मैं लोगों को क्रॉस करके कहीं तो जा रही थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एंड आई फेल्ट कि सो मेरे बैग में सिर्फ फोन था, तो मुझे इसका वेट तो पता चला था कुछ है. फिर एक मोमेंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा बैग खोला एंड फोन निकाल लिया. तो मतलब वो बैग बहुत हल्का हो गया. और फिर ऐसे बहुत ढूंढा आसपास, और इतनी भीड़ थी मैं कुछ नहीं कर सकती थी. एंड देन आई लॉस्ट माय फोन. सो या
So That's यहाँ my पर like you have experienced that theft होता हाँ ही है. एक्चुअली बट स्टिल बेटर देन पता नहीं यार इंडिया में तो नहीं हुआ मेरे साथ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो खराब ही है बट या बट आई थिंक मैंने लोगों की स्टोरी सुनी है जो जहाँ पर वो फोन छोड़ के आ गए कहीं एंड एक एक घंटे बाद गए एंड देन दे स्टिल गॉट इट सो इट्स मेरे साथ हुआ है ऐसा लाइक हाँ। मैं IKEA गई थी एंड मेरा एयरपॉड का जो लाइक हाँ। केस होता है एंड उसके अंदर दोनों पॉड्स थे एंड वो गिर गया मेरे पॉकेट से एंड दोनों पॉड्स निकल के अपना एक पॉइंट पे चला गया एंड आई डेंट रियलाइज़ कि मेरे पास मेरा पॉड्स नहीं है तो वो नोटिफिकेशन आता है ना आपके पास कि दिस इज़ लेफ्ट बिहाइंड तब मेरे को पता चला एंड हम पास ही थे देन हमने उनको फ़ोन किया तो मतलब लाइक मैंने ट्रैक किया तो दोनों अलग अलग पॉइंट पे दिखा रहे थे एंड देन हम वापस IKEA गए तो दे वर इन द लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन एंड वो मुझे मिल गए और मैंने चेक किया तो उसमें दोनों पॉड्स थे लाइक मेरे को बिल्कुल भी लाइक विश्वास नहीं हुआ कि दोनों पॉड्स अलग अलग गिरे हैं तो लाइक कहीं मिस भी हो सकते हैं या डैमेज भी हो सकते हैं एंड दे वर लाइक ऑल राइट इन देयर केस तो मेरे साथ ऑल्सो यहाँ पर हाँ मतलब गुड एग्जाम्पल तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा है और ऐसा भी होता है ना यहाँ पर Amazon डिलीवरी वाले जैसे इंडिया में आपको हाथ में देके जाते हैं आपसे साइन लेते हैं यार तो यहाँ पर वो आपके घर के सामने रख के चले जाएंगे हाँ तो बहुत सारे पार्सल्स इस बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ यहाँ पर दे हैव रिसेप्शनिस्ट एंड वो लोग कलेक्ट करते हैं आपके बिहाफ देन कॉल यू दे मेल यू कि आपका कोई पार्सल आया गो एंड कलेक्ट फ्रॉम देयर बट लाइक देयर आर लोकेशंस जहाँ पे वो बिल्डिंग के सामने रख के चले जाते हैं फिर घरों में जब आप जैसे सिंगल होम में रह रहे हो तो वो आपके घर के पास सामने रख के चले जाते हैं तो आई हैव हर्ड इनफैक्ट सारे शिकागो का भी यही सीन है मेरी मैनेजर फिलाडेल्फिया में उसने मुझे ऐसी सिमिलर स्टोरी सुनाई है तो लोग वो चोरी कर बिकॉज आपको नोटिफिकेशन तो थोड़ा तो डिले होता है ना जितने में बंदा रखते हैं एंड इवन अगर आप घर पे नहीं हो या कहीं बाहर गए हो तो हाँ, आपके घर के बाहर नहीं रखा बाहर रहता है एग्जैक्टली तो चोरी हो जाते हैं वो ओके तो ऐसा होता है क्राइम तो यहाँ पे, है मतलब crime है। हाँ हमने लाइक पहले इस टॉपिक पे बात करी बट कोई डिफिकल्टी आती है सिंस काम भी करना है पूरे दिन फुल टाइम जॉब घर से करनी है बट घर का भी सारा काम करना है सो कैसे मैनेज होता है वही टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है आप मील प्रेप इज अ ग्रेट ऑप्शन आप रात का दोपहर का खाना रात में बना के रख लो ओके जैसे मैं संडेज को घर साफ करती हूँ डेली तो इतना गंदा घर भी नहीं होता वैसे तो हाँ और आप सुबह उठ के फर्स्ट थिंग आई डू इज चेक माई कैलेंडर कि मेरी मीटिंग कब कब है उसके बीच में मैं जो मेरे घर के काम में कब कब कर सकती हूँ eventually of course you won't get house help तो खुद ही करना पड़ेगा तो that's the management आप धीरे धीरे सीख जाते हो तो खाना लाइक रोज बनाते हो या फ्रोजन फूड मल्टीपल रहता है या फ्रोजन फूड या फ्रेश फूड आई थिंक मैं तो फ्रेश ही बनाती हूँ मैं फ्रोजन नहीं खा सकती हूँ तो हाँ इट्स डूएबल वही आपको मैनेज करना पड़ता है पर ऐसा नहीं है कि आपको फ्रोजन फूड पे जिंदा रहना पड़ेगा एंड देन हमारा माइंडसेट भी ऐसा हो गया है कि लाइक अब ये खुद ही करना है तो इट्स बेटर टू डू इट एफिशिएंसी आ गई है हमें अब हम एक घंटे में खाना बना के खा सकते हैं जो कि हम इंडिया में अगर मैं खाना बना रही तो आई यूज्ड टू टेक लाइक 2-3 घंटे खाना ही बन रहा था खाना बना लेते हैं खा लेते हैं एंड सब चकाचक साफ भी कर देते हैं साफ कर देते हैं एग्जैक्टली और ऐसा नहीं है वो तो अभी सिर्फ जॉब ही है तो 8 घंटे छोड़ के मैनेज कर सकती हूँ बट जब मैं कॉलेज में थी तब मैं भी खाती थी फ्रोजन पराठे क्योंकि अब काम भी करना है पढ़ाई भी करनी है नौकरी भी ढूंढनी है सब बहुत सारा मतलब उस टाइम मैनेजेबल नहीं था बट अभी तो है थोड़ा स्ट्रेस भी होता है एंड फिर खाना बनाने में टाइम तो लगता है और इनिशियली मैं कहूँगी कि पहले साल में जितनी एफिशिएंसी थी प्लस अब 3-4 साल हो गए जो एफिशिएंसी अब है उसमें भी डिफरेंस है एंड एक बार आपकी जॉब लग जाती है फिर तो खाने ही खाने बनाते फिर आप संडे सैटरडे को ढूंढ रहे होते कि आज क्या खाए आज क्या बनाए लाइक फैंसी मील्स फुल इंडियन पूरा हम मेन कोर्स मील बनाते हैं 3 कोर्स लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि you can actually cook better meals than what you get in restaurants Indian restaurants here हाँ एंड एक्सपेंसिव भी होता है कभी कभार तो ऐसा लगता है कि इतने पैसे दिए हैं इस चीज के और इससे बेटर तो हम घर में बना लेंगे हाँ और बहुत ही खराब खा रहे हो लाइक एवरेज भी नहीं खराब खा रहे हो तो उसमें मुझसे दुख होता है कि इससे बेटर तो मैं खुद बना लेती इंडियन रेस्टोरेंट्स तो यहाँ पर लाइक बहुत कम ही अच्छे होते हैं नहीं तो बहुत एक तो वो बहुत अमेरिकनाइज्ड खाना होता है बहुत ब्लैंड होता है लाइक अपने को लगता है कि आप इतने स्पाइसेस खाते आए हैं शुरू से तो हमको लगता है कि इससे बेटर आप घर पे बना लोगे
Yeah. एंड यू लिव इन शिकागो राइट? सो शिकागो में आई थिंक मैकडोनल्ड्स का हेडक्वार्टर्स है. सो वहाँ पर आई हैव हर्ड कि मैकालू टिक्की मिलती है. सो हैव यू लाइक ट्राइड दैट? या मल्टीपल टाइम्स. तो हेडक्वार्टर नहीं है बट ये है मैकडी है एक जगह पर जहाँ पर वो लोग हर कंट्री का मेन्यू ऑन या ग्लोबल मेन्यू होता है. हाँ, ग्लोबल मेन्यू लेकर आते हैं. तो उसमें कभी कभी इंडिया आता है, ऐसे साल में एक बार, 6 महीने में एक बार. हाँ, ट्राई किया मैंने कालू टिक्की. वो एग्जैक्टली सेम नहीं होती, समथिंग ऑफ, बट हाँ डुएबल. आपने अगर 6 साल भर में नहीं खाई है तो अच्छा ही लगता है खा के. क्योंकि इंडिया में हम लाइक वी यूज्ड टू हैव मैकालू टिक्की आई थिंक काफी. अब मैं जब इंडिया जाती हूँ तो मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट एक बार तो खा के आऊँ, या फिर एयरपोर्ट पे आने से पहले मैं कालू टिक्की खा के आऊँ क्योंकि याद नहीं मिल रही है. नाइस. और क्या ऐसा लगता है कि चैलेंजेस जो यहाँ पे इजीली हो जाते हैं या इंडिया में टफ है, या इंडिया में इजीली हो जाते हैं यहाँ पे टफ है? यहाँ पर इजीली हो जाते हैं. यहाँ पर हर चीज के लिए यू गेट अ टूल, मशीन. या हम यहाँ पे मशीन लाइफ बहुत है हमारी. हाँ, बहुत ज्यादा है. तो इंडिया में एटलीस्ट चावल बनाने हैं तो राइस कुकर में डाल दो. हाँ एग्जैक्टली. जो मुझे लगता था कि यार इसके लिए कुछ ना मशीन होनी चाहिए, और देन यू कम टू यूएस एंड यू आर लाइक हाँ ये तो है ऑलरेडी. तो दे हैव सॉल्व्ड बेटर प्रॉब्लम्स देन अस ऐसे घर के डेली चीजों में. व्हाट एल्स कुछ याद नहीं आ रहा है. मैंने सुना है यहाँ पे कॉन्सर्ट्स में जाना इजी है. टेल मी अबाउट इट. तो अभी इंडिया में चल रहा है वो दिलजीत नहीं सॉरी कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट के टिकट्स आए एंड दे गॉट से सोल्ड आउट इन मे बी मिनट्स और सेकंड्स, आई डोंट नो. एंड पीपल आर लाइक signing in book my show, it's getting crashed और लाइन में लगे हैं लोग, क्यू है आपके आगे. लोग ahead of you ऐसे स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हुए हैं. तो हाँ यहाँ पे तो एक तो कॉन्सर्ट ज्यादा होते रहते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उनकी, और ऑफ कोर्स लोग कम है. कॉन्सर्ट का सॉरी स्टेडियम का कैपेसिटी तो उतनी है, लोग कम है, तो आपको सीट्स बहुत इजीली मिल जाती हैं. आई थिंक मुझे लगता है चीपर प्राइस पे मिलती है देन कंपेयर टू इंडिया. हाँ राइट. वी वेंट टू कोल्डप्ले कॉन्सर्ट एंड वी पेड लाइक $100 पर पर्सन. या एंड इंडिया में भी उन्होंने आई थिंक रेंजिंग फ्रॉम 2000 to 6000 की टिकट्स निकाली थी. बट नाउ लाइक अब क्योंकि वो रीसेल हो रही हैं तो दे आर गोइंग लाइक 40,000 और 80,000 के आसपास आई थिंक. तो यहाँ पे ज़्यादा चीप है कोल्ड प्ले अटेंड करना. और फिर बार बार करते रहते हैं वो. इंडिया में से कोल्ड प्ले आया हुआ है पहले भी, पर आई थिंक 5 साल पहले. तो वही ओके. इट्स बेटर एंड इजी to go on concerts and check your wish list जो भी है then back in India. हाँ. एंड मेरे लिए तो जो एक चीज़ लाइक हम कोल्ड प्ले में साथ ही गए थे तो मतलब वो आई थिंक मेरा पहला कॉन्सर्ट था. मैं इतना कॉन्सर्ट वगैरह नहीं जाती थी बैक इन इंडिया टू और यहाँ पर भी. तो मेरे को ऐसा लगता था कि इतने सारे लोग जो हैं, बिकॉज अपने को तो वही बैक ऑफ द माइंड एक्सपीरियंस है ना कि सब एकदम भगदड़ मच जाएगी और सब खाली कैसे होगा ये वो. बट जब शो एंड हुआ तो कितनी सीमलेसली स्टेडियम खाली हुआ, आपको पता भी नहीं चलेगा. कोई इतना सारा क्राउड इतनी मैनेजेबल वे में वो लोग निकालते हैं. सो मेरे लिए तो वो एक कल्चरल शॉक था या क्या. एक्चुअली मैं उस लेवल पे बड़े कॉन्सर्ट तो इंडिया में भी नहीं गई थी, बट हाँ छोटे मोटे कॉन्सर्ट्स में भी वहाँ से भीड़ हो जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है अंदर जाने के लिए. यहाँ पर वो लड़ाई हो जाती है अगर कोई आपके आगे, आप उसके हल्का आगे आ गए या ये वो. एग्जैक्टली. मुझे एयरपोर्ट सिक्योरिटी का के लिए भी लगता है लाइक एवरी टाइम आई गो फॉर एयरपोर्ट सिक्योरिटी इन इंडिया मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है कि क्या है, लोग फॉलो भी नहीं कर रहे हैं लाइन, और जिसको आगे लगना है वो जल्द आगे जा रहा है. वो सिक्योरिटी वाले जो लोग खड़े हैं वो तो सिर्फ कुछ बोल ही नहीं रहे किसी को. यहाँ पर इट्स वेरी सीमलेस. कितना बिजी एयरपोर्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है यहाँ पे लोग है ना 1 hand डिस्टेंस लेके खड़े होते हैं. हाँ मतलब कोर्स एटिकेट्स मैनर्स ज्यादा है, लोग से फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंडिया में नहीं होता है. तो हाँ शिकागो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी लाइक 10-15 मिनट की होती है मैक्स टू मैक्स. मैंने 15 मिनट आज तक खड़ी हुई होंगी मैं लाइन में, बट
इंडिया में तो गोवा एयरपोर्ट, लेकिन छोटा एयरपोर्ट इज ऑल्सो आधे घंटे की लाइन. एंड इवन अगर यहाँ पर भीड़ भी है ना, ऐसा नहीं है भीड़ नहीं होती है. लाइक एक बार जब हम दिवाली पे घर जा रहे थे तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे, एयरपोर्ट बहुत क्राउडेड था और सिक्योरिटी में टाइम भी लग रहा था. बट है ना, लोग परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपका खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर. लाइक हमको 1 घंटा भी लगा है सिक्योरिटी लाइन में, बट मैनेजेबल होता है. और लोग है ना, काफ़ी पेशेंस होता है लोगों में यहाँ पर, तो वो आराम से खड़े रहते हैं, इवन उनके बच्चे भी और वो खुद भी. तो ये चीज़ मेरे को डिफरेंट लगी थी. सिंपल फॉर ड्राइविंग यहाँ पर पेडेस्ट्रियंस को कितनी इज्जत मिलती है. इंडिया में तो आपका रोड क्रॉस यहाँ पर एक्चुअली वो सिग्नल भी होता है कि जब आपको पेडेस्ट्रियन वे होगा का ऑन होगा सिग्नल, देन यू आर सपोज्ड टू वॉक. बट स्टिल अगर आप ऐसे सबअर्ब्स में चल रहे हो तो लोग आपके लिए रुकते हैं, लाइक पेशेंटली ड्राइव करते हैं. राइट, मेरे लिए वो शॉकिंग था कि अगर मैं जा रही हूँ या फिर अगर कोई साइकिल चला रहा है, कोई बाइक पर है, तो उनको लाइक प्रेफरेंस मिलती है पहले, एंड काफ़ी दूर से निकलता है कोई गाड़ी वाला. सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ पे कि आपकी जान की कीमत है. मैं अभी रिसेंटली ड्राइविंग क्लास गई थी, तो वो इंस्ट्रक्टर वाज लाइक, जैसे कोई दिखे आगे सामने चले, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बिल्कुल ब्रेक ही लगा दो. मेरा इंडियन माइंड वाज लाइक हाँ निकल जाएगा इतने में, तो मैं स्लो तो हो गई हूँ. तो उसने मुझे फाइनली रिव्यू ये दिया था कि नॉट स्टॉपिंग व्हेन यू सी अ पेडेस्ट्रियन, यू आर सपोज्ड टू स्टॉप as soon as you see someone. Yeah, you're not supposed to slow, but you're not supposed to stop. Stop, exactly. Yeah. और मैं सोचती कि नहीं यार निकल तो जाएंगे इतने में, ब्रेक पे पैर नहीं रख रही हूँ मैं. And the other thing that happened with me, like when I started driving, यहाँ पर इंडिया में भी मैं ड्राइव करती थी, बट यहाँ पे जो मुझे चैलेंज आया था कि लेन सिस्टम अलग है, राइट एंड लेफ्ट यहाँ का अलग है. सो वंस आई वॉज ड्राइविंग एक फ्रेंड के साथ, तो एक स्कूल बस आई, एंड स्कूल बस आती है तो चाहे बच्चे इस लेन में उतर रहे हैं चाहे उस लेन में उतर रहे हैं, सारी लेन की गाड़ियाँ रुक जाती हैं. एंड सब रुक गए तो मैं भी रुक गई. बट वो चीज़ मेरे लिए सरप्राइज थी, मैं ये देख कर कि बच्चे उतर रहे हैं, और जब तक बच्चे उतर के फुटपाथ तक या सेफ जोन तक नहीं पहुंच गए तब तक चलता नहीं है कोई भी. हाँ एग्जैक्टली, वो सब तो नहीं होता है इंडिया में. Okay. अब जाके वहाँ के रोड्स पे ऐसा लगता है कि वो शिट लोग हॉर्न क्यों बजा रहे हैं इतना. शोर लगता है मुझे, ऐसा लगता है कि बहुत शोर है. लाइक फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आई थी ना, तो मैं भी शिकागो ही आई थी, एंड जब मैं लाइक फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे रोड पे बहुत शांति है. लाइक बहुत ही ज़्यादा शांति लगती है कभी कभी, स्पेशली जब आप इंडिया हो के आओ ना, तो ऐसा लगता है काफ़ी थोड़ा डिप्रेसिंग सा. बट वहाँ पर वो चीज़ मुझे थोड़ा बहुत अनॉय करती है कि अननेसेसरी हॉर्न होता है एक्चुअली वहाँ पर, जहाँ नेसेसरी नहीं है वहाँ पर भी लोग हॉर्न बजाते हैं. मुझे लगता है वहाँ पे लोग हॉर्न को एज अ टॉकिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं व्हाइल दे आर इन ट्रैफिक. सो कि अरे तू मेरे कैसे आ गया पी, तू कैसे आगे कैसे आया, फिर एक और. एग्जैक्टली, या Okay. that was different. Okay. What advice would you give to someone like जो आप consider कर रहा है US आना, whether as a student or सीधा like as a job पे यहाँ पर? If you are coming as a student, तो हाँ मतलब there will be hardships, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि आपको वही आपकी लाइफ will take a turn जहाँ पर आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, and then finding a job is not that easy as it seems to be, because जो भी अपने LinkedIn पे या Instagram पे लोग पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के जो ऑलरेडी वर्किंग है, they only post good stories and good pictures about their life here, but like there is some struggle which you have to go through to get to that point. हाँ, बैक स्टोरी इतना कोई ज़्यादा नहीं बताता कि ज़्यादा नहीं वहाँ तक डालता. पहुँचे कैसे, लेकिन अगर आना है यहाँ पर तो बी प्रिपेयर्ड कि मतलब ये सब खुद ही करना पड़ेगा. और फिर हार्ड डेज होंगे लाइफ में, बट इवेंचुअली सब जैसे सबके साथ it ends up being good, सब everything turns out good, तो वो तो होगा ही है. या लाइफ इज डिफरेंट हियर. और ऐसा था लाइक वी डिस्कस दिस, जब आपकी पहली जॉब लगी तो ऐसा हुआ कि आपको यहाँ पर स्क्रैच से शुरू करना पड़ा, और लाइक जो लेवल इंडिया में था उसके जैसा ही मिला, या यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग? स्क्रैच से शुरू करना पड़ा किस रिस्पेक्ट में? लाइक आई वुड से जो जॉब लेवल होता है, ओके, मेनली हाँ जॉब लेवल जो आपका होता है.
तो मैंने एक्चुअली ज़्यादा बड़ा मेजर स्विच नहीं किया था, मैं ऑलरेडी डेटा में काम कर रही थी, यहाँ पर भी डेटा में काम किया आके, Okay. मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर रोल। तो हाँ, तो मेरे लिए तो उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस ही माना, एंड व्हाटएवर दे गेव मी pretty much aligned to what I was doing before. Okay. But हाँ, BI डेटा साइंस वाला फील्ड वाज डिफरेंट, pretty new to me, and then वहाँ पर मुझे स्टार्ट करना पड़ा, बट फिर भी बट it was मोस्टली fun. एंड इवन विद योर हाँ, फ्रेंड्स टू, सबके साथ ऐसा ही हुआ था कि लाइक सबको स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ता है इवन? लोग मोस्टली यहाँ पर अपना करियर स्विच करने भी आते हैं, मोस्टली नहीं बोलूंगी, बट लाइक हाँ, गुड पोर्शन ऑफ पीपल हु कम हियर, लाइक लोग जो इंडिया में कर रहे होते हैं वो एग्जैक्टली सेम चीज करने बहुत कम लोग आते हैं। हाँ. तो सबको फिर अपना कुछ आप नया करने आए हो जो आप पहले नहीं कर रहे हो, तो आपको रेज्यूमे में आपको जॉब मिल भी जाएगी, मतलब बोल के और जो भी प्रेजेंट करके आपकी एकेडमिक्स, बट जब आप स्टार्ट करोगे तब तो वो आपके लिए न्यू ही होगा, तो दैट्स हाउ। ओके. एंड एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक यू लिव इन शिकागो, तो शिकागो का एग्जांपल लेते हैं. लाइक एक तो यहाँ पर हर स्टेट के हिसाब से आपके लिविंग एक्सपेंसेस एंड सैलरी डिफरेंट होती है. तो अगर किसी की स्टार्टिंग सैलरी है फॉर एग्जांपल 100,000 USD, कंसीडर करते हैं कि एग्जांपल, सो हाउ ही और शी वुड बी मैनेजिंग, मतलब क्या उसके लिविंग एक्सपेंसेस रहते होंगे, लाइक रेंट, यूटिलिटीज़ और ये सब, एंड देन कितना वो बाहर स्पेंड कर रहा है, लाइक रेस्टोरेंट पे या शॉपिंग पे, तो कितनी सेविंग्स वो आइडियली कर सकता है, व्हाट परसेंटेज वुड दैट बी? Okay, that's a good question. That depends on person, I would say, but अगर आप आइडियल सिचुएशन में रहोगे, बट आप being an Indian, आप इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगन तो नहीं होते खर्चों के हिसाब से, आप थोड़े बहुत तो सोच के चलते हो, maybe 50% of your salary you can save, because आप कितना भी खर्च कर लोगे इतना तो you get a good amount, right? आपके Even आपकी after salary- taxes and insurance, That's what I do. Like I try to save 50%, and which is a very good ratio, I would say. आपकी 50% काफ़ी अच्छा रेशियो है अगर आप यहाँ USD में सेव करो. बिकॉज मैं आजकल देखती हूँ लाइक ऑन सोशल मीडिया, एंड काफ़ी सवाल मेरे फ्रेंड्स और बाकी लोग भी मुझे पूछते हैं कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा सैलरी है एंड देन आप खर्च भी USD में कर रहे हो, टैक्सेस भी USD में दे रहे हो, तो इज़ इट वर्थ इट कि आप वहाँ जाओ और जब इतना ज़्यादा आप पे कर रहे हो तो उतना ज़्यादा आप बचाते भी हो, वर्सेस अगर आप इंडिया में होते परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से आप उतना ही अर्न कर रहे होते. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 100,000 USD अर्न कर रहे हो और वहाँ पर 30 lakhs अर्न कर रहे हो, तो वहाँ पर 30 lakhs में कितना बचा लेते, बिकॉज रिलेटिवली चीपर है इंडिया में चीज़ें, और यहाँ 100,000 भी अर्न कर रहे हो तो भी आप, क्योंकि यहाँ टैक्स भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स तो इंडिया में भी एक 30 लाख की सैलरी पे बहुत ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब्स, आप तब भी हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हो और यहाँ पर भी आप टैक्स दे रहे हो. तो हैव यू फेल्ट कि यहाँ पर टैक्स दे रहे हो तो उसके बाद आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है? लाइक इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हाँ ऑफ कोर्स दैट रोड्स यहाँ पे कितनी अच्छी हैं. रोड्स अच्छी हैं, इंफ्रा ऑल टुगेदर अच्छा है, एंड देन अच्छा है, चीज़ें ईजी हैं आई वुड से करनी यहाँ पर. ऐसा लगा सेविंग, हाँ सेविंग जो लाइक सबका. आई थिंक मैं सेम सिचुएशन में इंडिया में रखूंगी एज यू सेड 30 lakhs वाले उसमें, तो आई एम श्योर आई wouldn't be able to save as much as I am right now. Okay. तो हाँ, savings प्रोग्रेस तो होती है अगर हम, क्योंकि सबका कोई ना कोई लाइक गोल तो होता ही है ना लाइफ में, लाइक इतनी दूर हम आते हैं तो हमारा एक गोल तो ये होता है कि हम अच्छा सेव कर लें और ये सब. सो इट्स आप एटलीस्ट 2x 3x तो सेव कर लेते हो जितना आप इंडिया में कर पाते हो उससे ज़्यादा. ओके. एंड लुकिंग बैक, इज़ देयर एनीथिंग यू विश जो यहाँ पे आने से पहले पता होती है आपको तो ज़्यादा बेटर होता है, या फिर ऐसा कुछ था? हाँ, मुझे लगता है कि अब तो इट्स हाई टाइम, अगर इंडिया में भी लोगों को सिखाना चाहिए अपना काम खुद करना. हाँ, इवन तो मैंने यहाँ पे देखा इवन हाई स्कूल के बच्चे भी अपना काम खुद करते हैं, एंड लाइक ऐसा नहीं है कि वो पॉकेट मनी पे ही सर्वाइव कर रहे हैं,
दे स्टार्ट देयर जॉब्स एंड वो खुद ही अपने लिए कर रहे हाँ। होते हैं, अपना रेंट खुद दे रहे होते हैं अपनी, इवन मैंने कुछ बच्चों को तो देखा है यहाँ पर जो अपनी ट्यूशन भी खुद दे रहे होते हैं कॉलेज की. सो सेल्फ Exactly. रिलायंट काफ़ी है यहाँ पर. कभी तो हमारे ऑफिस में इसे ग्रुप फन एक्टिविटी में they were asking कि what was your first job and all the Americans they were like we did this and that से अंडरग्रेड सॉरी हाई स्कूल में ये किया, स्कूल में ये किया, राइट आफ्टर कॉलेज ये किया, कॉलेज में ये किया. और ऑल द इंडियंस they were like हाँ कॉलेज इंजीनियरिंग की और उसके बाद पहली जॉब आफ्टर इंजीनियरिंग. Yeah. हमारे दुनिया में ऐसा नहीं होता है, पता नहीं. बट थिंग्स आर चेंजिंग बट स्टिल अभी भी उतना नहीं होता कि हम हाँ, स्पेशली जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते. इवन आपके पेरेंट्स भी, इवन अगर मैं अपने पेरेंट्स भी कंसीडर करूँ तो शायद वो मुझे करने भी नहीं देंगे कि फोकस ऑन योर स्टडीज. ये बहुत ज़्यादा होता है कि तुमने पढ़ाई पे ध्यान दो. एंड ऑल्सो इट्स मैटर ऑफ प्राइड कि अरे हमारा बच्चा किसी रेस्टोरेंट में कैसे काम कर सकता है. हाँ, राइट. we are मतलब sufficient enough, we have sufficient money to you know survive. ये चीज़ मैंने यहाँ पर आकर काफ़ी लर्न करी है कि कोई भी जॉब छोटी नहीं है या कोई भी जॉब ऐसी नहीं है कि आप कर नहीं सकते. Exactly. Okay. Okay. Do you see yourself staying in USA like longer term? Yeah, like you wanna go back? I तो definitely want to go back because घर है यार, घर parents Family है. हाँ. हाँ, तो after a point I think I will be going back. I see myself going back for sure. वो ये है कि save as much money as you can here in US while you're on visa and then yeah, go back and settle back in India. और अब तो India is also equally advanced. हाँ, काफ़ी ग्रोथ हो रही है and all my friends back in India they're earning good money. तो now that I have good experience यहाँ पर अच्छा काम करके companies मतलब job में I'm positive कि it will help me finding a good job that pays me well back in India. okay. We'll wrap up today's episode with this last question. Do you think कि यहाँ पे आना और इतना टाइम एंड मनी दोनों ही इन्वेस्ट करना एंड देन जितने स्ट्रगल्स होते हैं, जितने चैलेंजेस होते हैं, उसके बाद इट वाज ऑल वर्थ इट? For sure, like this made me a different person. This experience made me a different person altogether. I'm more independent now financially, personally. Made really good friends here. Had a great experience. घूमना फिरना यहाँ पर मतलब I didn't used to do इतनी ज़्यादा ट्रिप्स बैक इन इंडिया. यहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस मिला, एक्सपोजर मिला. हाँ, तो मेरे लिए तो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई वुड रिकमेंड इट. मतलब इफ यू आर okay with all the struggles you'll have to face here, it's a good option. Chalo, nice. Thank you so much, Divya, for tuning in today and giving us time. And it was a very special episode for us since it was our first episode and you were a special guest to us. Oh, thank you. I had a great time. That brings us to the end of today's episode. Thank you so much to Divya for giving us time today and sharing her journey and experiences with us. It's been truly insightful to hear from her about her successes and learnings that she has achieved along the way. I hope her story resonated with those of you who are considering coming here to the US or those of you who are already living here and navigating your path yourselves. Please hit the like button if you really like the video and subscribe the channel for more videos like these. And if you have any suggestions or comments, please comment down below to let me know. I love to hear back from you.